Hello, future makers. Welcome to Teacherpreneur. A good tutor can inspire, encourage, and ignite the curiosity to learn. We have received a lot of love on our home tutoring series, and since I'm already in the tutoring space for 10 plus years now, I thought this is the correct time to give you those tips which I have never shared before. All the tips that I'm sharing in today's video is specifically if you want to become better from the rest. These tips will not only help you get more students but also to stand out from the crowd. So if you are a home tutor who wants to grow in this space, then please watch this video till the end and let me know which one was your favorite tip in the comment section below. With that said, let's get started. The first tip that I would like to share with you is to be done when parents come for inquiry or admission with their kids. Always remember that the parents really want to talk to you, but children can be very active. Please note that in such meetings, you would really like to talk to the parent and the parent would like to know the details from you. But if they have got a child along, then it may be a disturbance for you. How to solve this problem? Be ready with a few age appropriate worksheets in your hand. Whenever the parent is talking to you for inquiry, give one or two worksheets to that child. Let him or her solve the worksheets. Meanwhile, you can talk to the parent. This will have many benefits. First, the child will not disturb you both. Second, you will be able to gauge how much the child knows in each subject so you can decide what fees to take and how to approach the child. Let's say that the worksheets reveal that the child is very good at English. Then you know that in English he or she is possibly good. So more focus is to be put up on maths. It is a very small thing, but the parent will be really impressed because throughout the conversation, the child did not come to disturb you and you could easily gauge the capability of the child within the first meeting itself. आप एक बार करके देखिए, it will really make a huge difference. The second tip that I would like to share with you is use only one platform to promote yourself. If you think the parents are more active on Facebook, then use Facebook as a medium. If you think the parents are more active on Instagram, then use Instagram. And sometimes you could also use YouTube. But please understand that YouTube has a very wider reach. So if you're sitting in Mumbai, let's say, and you're uploading constant videos of your home tuitions, the videos may be watched by people from any part of the country. And if you're doing online tutoring, this may be great for you. But if you're doing home tutoring, then I feel that Facebook and Instagram, you have to gauge where the parents are more active. According to me, in my experience, parents are more active on Facebook. So then you could put your videos on that platform. Alternatively, you also have to understand that the existing parents of your students are already on WhatsApp and they can see your WhatsApp status. So what you could do is some clips from your daily teaching without showing or revealing any identity of the child can be put up on WhatsApp status. This will give the parents more confidence that they have made the right choice and you will also get more students in return. आजकल की पूरी दुनिया वीडियोस पे ही चल रही है. इनफैक्ट आप भी मुझे एक वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं. तो आपके अपने छोटे छोटे वीडियोस अगर आप बनाकर अपलोड करोगे तो वो डेफिनेटली आपकी ऑथेंटिसिटी और रीच को बढ़ाएंगे और पेरेंट्स का ट्रस्ट भी आप में और पक्का होता जाएगा. आई नो थोड़ी ज्यादा मेहनत है, बट इफ यू डू दिस वन एक्स्ट्रा स्टेप यू विल हैव एन एज ओवर अदर्स. द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम अबाउट टू शेयर, वो समझते तो सभी है पर इम्प्लीमेंट हर कोई नहीं करता. दिस इज स्पेशली फॉर ट्यूटर्स हु टीच फ्रॉम देयर ओन होम. जब भी इट्स टाइम फॉर योर ट्यूशंस और व्हेनेवर द किड्स स्टार्ट कमिंग इन, यू शुड बी ड्रेस्ड प्रोफेशनली. आप घर के कपड़ों में, पजामों में वहां बैठकर पढ़ाएंगे तो वो ऑरा क्रिएट ही नहीं होगा. आपको अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करना है, बाल अच्छे से कोम करने हैं और ऐसे बैठना है जैसे आप प्रोफेशनली किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं. इससे बहुत फायदे होते हैं. फर्स्ट, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को
छोड़ने या लेने आ रहा है तो आपकी ड्रेसिंग आपके लिए बहुत काम करेगी। सेकेंडली, लेट्स अज्यूम कि कोई नया एडमिशन अचानक से आ जाता है तो उस दिन आपको एम्बेरेस्ड फील नहीं करना पड़ेगा। यू आर ऑल रेडी एंड ऑल सेट टू फेस द न्यू पेरेंट। थर्डली, जब आप अपने प्रोफेशन को सीरियसली लेंगे तो बच्चे आपको सीरियसली लेंगे। अगर आप घर की तरह बैठे हो, बाल कैसे भी बने हैं, बैठ के मटर छील रहे हो और बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चे भी जानते हैं कि आप अपने प्रोफेशन को लेकर कितना सीरियस है और वो उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देंगे। एंड माइंड यू, बच्चे ये सारी बातें घर जाकर अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आज टीचर मटर छील रही थी, आज टीचर बार बार कुकर की सीटी बंद करने जा रही थी, एंड आई हैव सीन दिस एंड आई डोंट थिंक इट्स प्रोफेशनल इनफ। कभी कभी हम ये चाहते नहीं हैं पर सबकॉन्शियसली हमसे हो जाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये देखा है कि जो टीचर्स अभी कंफर्टेबल हो गए होम ट्यूटरिंग स्पेस में, जिसके पास बच्चे आते ही आते हैं ना, वो इस तरह से अपने बच्चों को ग्रांटेड लेने लगते हैं और फिर उनका ग्रोथ एक प्लेटो स्टेज पे आ जाता है कि ज्यादा बच्चे भी नहीं आ रहे और जो आ रहे हैं वो भी एवरेज रिजल्ट्स दे रहे हैं। इससे आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ अफेक्ट करेगा। तो make sure you dress professionally, show professionally, and be a professional when you teach. Another tip that I would like to share with you is that please make sure that your teaching and learning are application based. जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको उनकी जिंदगी और उनके आसपास की चीजों से रिलेट करके पढ़ाइए। इससे ना बच्चा ग्रास्प करने के लिए रेडी होगा और उसको पता है कि मुझे इस ज्ञान की जरूरत है और इसको मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई में आने लगेगा। लेट्स से यू आर टीचिंग एडिशन टू प्राइमरी किड्स, वो टेक्स्ट बुक्स में लिखे सेम एग्जाम्पल्स देने के बजाय आप बच्चों के ही पाउच में से पेंसिल उठाओ और उनसे कहो, देखो मेरे हाथ में 3 पेंसिल है, मैंने तुम्हारी पाउच से और 2 ले ली, तो अब कितनी हुई मेरे पास। जब आप इस तरह से बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा आपसे पढ़ना चाहेगा, वो और सीखना चाहेगा और इससे आपका आधा बैटल वन है। पेरेंट्स भी खुश होंगे कि बच्चा आपके पास पढ़ने आता है और इंटरेस्ट से आता है, बच्चा अच्छा रिजल्ट भी देगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत का कुछ फल निकल कर आ रहा है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा पर ग्रेजुअली जब आप ये करने लगेंगे तो आपको भी पढ़ाने का बहुत मजा आएगा। The next thing that you have to keep in your mind while talking to the parents is the sandwich method. I do understand कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं. Some kids might be really naughty. But when you are conveying this to the parents, always use my sandwich method. First, the bread should be something good that you want to convey to the parent कि आपका बच्चा बहुत बढ़िया है, एक जगह पे बैठ के अपना काम करता है, किसी और को डिस्टर्ब नहीं करता। एंड देन व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स, आप बच्चे की एक्चुअल कंप्लेंट रखेंगे बट थोड़ा अच्छे से। फिर एंड में आती है एक और ब्रेड, जहां आप पूरे कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करेंगे पर एक अच्छे तरीके से विद अ सोल्यूशन जो आपके पेरेंट को करना है सो दैट द चाइल्ड परफॉर्म्स बेटर। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आपका बच्चा ना बहुत शांत बच्चा है, अगर मैं उसे कुछ काम दे दूं तो वो एक जगह पे बैठकर अपना काम करेगा, ना किसी को डिस्टर्ब करेगा, ना कभी कोई मस्ती करेगा। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। पर क्या है ना, मैथ साइंस इंग्लिश वो कर लेता है पर ना व्हेन इट कम्स टू हिंदी वो थोड़ा बोर हो जाता है, उसको ना मज़ा नहीं आता है हिंदी लैंग्वेज में, इट इज़ नॉट हिज इंटरेस्ट सब्जेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी हिंदी कराने बैठती हूँ तो मुझे उसे ज़्यादा देर बोलना पड़ता है कि रवि जल्दी पढ़, रवि जल्दी लिख। ऐसा उसे समझ सब कुछ आता है पर उसे थोड़ा बोरिंग लगता है ना, इसीलिए वो आलस करता है लिखने में और पढ़ाई करने में। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि जब भी बच्चा घर पे ऐसे ही फ्री बैठा हो तो आप उससे थोड़ा हिंदी में बात करिए, उससे बिठाइए और पूछिए आप आज टीचर ने हिंदी में क्या पढ़ाया। तो जब बच्चा आपके साथ थोड़ा हिंदी से लेकर बातचीत करेगा, उसे समझ आएगा कि हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, देन आई थिंक द रिजल्ट विल बी बेटर। जब आप इस तरह से पेरेंट को अप्रोच करेंगे तो दे विल ऑल्सो बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि आप चाहते हो कि पेरेंट भी एक टीम मेंबर बने और टीचर और पेरेंट मिलकर बच्चों की सक्सेस के लिए स्टेप्स ले। अगर आपको हमारा ये सैंडविच मेथड अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन। नाउ इफ यू आर अ ट्यूटर हु नीड्स मोर एडमिशंस बट नहीं पता कि बच्चे कहाँ से मिलेंगे, देन यू कुड रेफर टू आवर वीडियो हाउ टू फाइंड स्टूडेंट्स फॉर होम ट्यूशंस। द लिंक विल बी इन द आई बटन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बट एक चीज जो आपको समझनी होगी वो है
यू आर योर ओन पीआर। अगर आप कुछ पढ़ाते हैं तो वो दूसरों को बोलने में आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए दूसरों को ये बोलते वक्त कि मैं ट्यूशंस लेती हूँ। देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। आप तो ज्ञान बांट रहे हो एंड ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट पेरेंट्स दीज डेज आर लुकिंग आउट फॉर ट्यूशंस। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और ये सब करने के बावजूद अगर आपको और एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं तो यू हैव टू सी वेयर डू पेरेंट्स हैंग आउट द मोस्ट। अगर आपको लगता है कि आपके नेबरहुड में कोई पार्क है जिसमें बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स खेलने आते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक चार्ट पेपर लेंगे, अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपके टाइमिंग क्या है, आप कौन सी स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाने में कंफर्टेबल है, और अपना नाम और नंबर वहां लिख के रख देंगे। तो अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको डेफिनेटली कॉल बैक आएगा। ऑल्सो अगर आपके एरिया का कोई एक शॉप है जिसमें ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा की चीजें लेने जाते हैं, देन गिव सच पैम्पलेट्स टू दैट अंकल। उनको बोलो कि अगर आपको लगता है कि किसी के बच्चे हैं तो प्लीज उनको सिर्फ ये दे दीजिएगा। इस तरह से अगर 20 लोग आपका पैम्पलेट देख रहे हैं तो आपको 2 फोन तो जरूर आएंगे। ऑल्टरनेटिवली आप अपने लोकल न्यूज़पेपर वेंडर से भी कह सकते हैं टू पुट दिस पैम्पलेट्स इन द न्यूज़पेपर। बट दीज डेज ये पार्क और सुपर स्टोर वाला जो आइडिया है वो ज्यादा ट्रेंडिंग है और इफेक्टिव है। सो आई थॉट लेट मी शेयर इट विथ माई फ्यूचर मेकर्स सो दैट दे ऑल्सो बिकम टीचरप्रेन्योर्स। अगला टिप जिससे आप बच्चों की फेवरेट टीचर बन जाएंगी वो है प्ले बेस्ड लर्निंग। हर ट्यूशन टीचर वही टेक्स्ट बुक, वही बुक, वही 10-10 बार चीजें लिखकर रटवा रहा है, तो आप उन सब से अलग कैसे दिखेंगे? आपको हो सके उतना एक्टिविटीज और वर्कशीट से पढ़ाना है। जब आप ज्यादातर वर्कशीट्स देती है तो क्या होता है कि बच्चे को सिर्फ एक ही पेज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि पूरी टेक्स्ट बुक देखकर स्ट्रेस लेना है। तो वो लोग खुशी खुशी एक पेज भरकर आपको दे देंगे और आपका काम भी हो जाएगा। और जब आप एक्टिविटीज करते हो बच्चों के साथ तो बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो एक्टिविटी में ज्यादा लगता है, वो मन लगाकर वो चीजें करेंगे rather than writing with pencil in the same book। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी टीचर वेबसाइट्स शेयर करूं जिसपे आपको वर्कशीट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे, देन यू हैव टू कमेंट ऑन बिलो आई वांट वर्कशीट वीडियो। और अगर मेरे पास ऐसी 25 कमेंट्स आ जाएंगी तो आई विल डेफिनेटली मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट। One more thing that I would love to tell you is that every child is different। अगर आपके पास एक ही क्लास के 5 बच्चे आ रहे हैं तो भी पांचों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अलग होगी। हाउ टू डील विद दिस इज गिव वन गोल टू एवरी चाइल्ड। इट कुड बी पर्सनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू हिज और हर abilities, and as soon as the child accomplishes that personal goal you reward that child। जरूरी नहीं है कि वो रिवॉर्ड कोई गिफ्ट या टॉफी ही हो। यू कुड ऑल्सो टेल हिम दैट अगर तू ये ऐसे फटाफट से लिख लेता है तो आज मैं तुझे 10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगी। और बच्चों को घर जाने की और खेलने की बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो उसी एक्साइटमेंट में दे विल अकम्प्लिश दीज गोल्स and also outdo their previous performance, which means you will get the result that the parents and you are desiring for the child। The next thing that I want to personally tell you is that the teaching time should be teaching time only। अगर आप ट्यूशंस ले रहे हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स और बाकी पेरेंट्स को कह सकते हैं कि 5 to 7 मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, प्लीज उस दरमियान मुझे कॉल ना करें। अगर आपको कोई कॉल या मैसेज आ जाता है तो प्लीज बच्चों के सामने इन पर्सनल टॉक्स को ना लाए। ऑल्सो अगर आपके घर में आपको छोड़कर बाकी फैमिली मेंबर्स है तो आपको उन्हें इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा दैट दिस टाइम इज व्हेन स्टूडेंट्स कम एंड स्टडी। तो अगर वो लोग दूसरी रूम में बैठ के रील्स देख रहे हैं तो बच्चों का ध्यान उसी तरफ जाएगा और पढ़ाई में नहीं रहेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द एनवायरमेंट दैट इज क्रिएटेड इन योर होम इज प्योरली फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। एक और बात, अगर आपका खुद का बच्चा वही एज ग्रुप का है जिस एज ग्रुप के बच्चे आपके यहाँ ट्यूशंस पढ़ने आते हैं, तो फॉर द टाइम ऑफ द ट्यूशंस मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज आउटसाइड, द रूम इज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड देन यू टीच अदर्स। इससे आपका अननेसेसरी स्ट्रेस विल गो ऑफ। जाहिर सी बात है कि अगर आपका बच्चा भी उसी टाइम पे वहीं बैठ रहा है तो आपका थोड़ा बायस होगा,
बाकी बच्चे जो जानते हैं कि आपका बच्चा है वो आपकी पर्सनालिटी बायस पे कमेंट्स करेंगे। फिर आपका बच्चा अगर मस्ती करेगा तो सबके सामने तो आप उसको जरूरत से ज्यादा डांट नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो आपको मम्मी मानता है, तो वो सामने कुछ और बोल देगा। ये सब ना अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस है। तो अगर हो सके तो टीचिंग टाइम शुड बी लेफ्ट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ओनली। My last bonus tip is that you have to understand the weak students better. जो लोग अच्छा पढ़ते हैं ना वो कुछ भी करके परफॉर्म कर ही लेंगे एग्जाम में, बट जो लोगों का परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, आप उन बच्चों को बैठकर एनालाइज कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आंसर वेल इन एग्जाम बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली, क्योंकि उनको रीडिंग नहीं आता है या फिर उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि करना क्या था क्वेश्चन में। यू हैड टू सर्कल द बिगिनिंग लेटर, आपको मैच करना है, आपको क्रॉस करना है, वो समझ नहीं पाते हैं और कुछ ना कुछ करके आ जाता है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स चले जाते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, जिनके स्पेलिंग्स हमेशा गलत होते हैं या प्रोनाउंसिएशंस में बहुत दिक्कत है, देन यू कुड बी देयर फोनिक्स टीचर एज वेल। फोनिक्स से ना ये मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स दूर हो जाएंगे, and then the child will be able to read correctly and perform better, and then the child will be so confident during exams that he will be able to read correctly and answer correctly। तो आपको उनके मार्क्स में डिफरेंस खुद ब खुद नजर आएगा। एंड लेट्स से आप बच्चों की ऑल सब्जेक्ट्स क्लासेस तो ले ही रहे हैं, तो फोनिक्स कुड बी एन एक्स्ट्रा स्किल दैट कुड बी एडेड, और आप पेरेंट्स को कह सकते हैं कि मैं बच्चों को आधा घंटा और बिठाऊंगी और फोनिक्स भी पढ़ाऊंगी, जिससे यू आर ओपनिंग अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर योरसेल्फ and the parents are comfortable with you, the child is set within your own space, तो आपको एडमिशंस मिलने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और अगर आप मुझसे फोनिक्स पढ़ना चाहते हैं और एक फोनिक्स टीचर बनना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट फोनिकप्रेन्योर। इस कोर्स में हम टीचर्स और पेरेंट्स को फोनिक्स सिखाते भी हैं और ये भी सिखाते हैं कि इसको आगे पढ़ाना कैसे है। इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट फोनिकप्रेन्योर देन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम @teacherpreneur.in। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एट द एंड आई वुड ओनली लाइक टू से tutoring is not about helping someone learn, it's about helping someone grow. If students are coming to your classes and showing good results, you will automatically have more students and you will excel in this career. If you like today's video, do hit the like button. Comment and tell us what problems are you facing as a tutor ताकि हम और videos बनाकर आपकी मदद कर सके। Share this video with your teacher friends and family and subscribe to Teacherpreneur and press that bell icon to be a part of our Future Makers family. See you soon.